Hi everyone, welcome to An Academy. This is a channel that is run by India's largest learning platform. So, as you all know, An Academy is currently helping ninth and 10th CBSE students to crack their exams, and for that, they are bringing in a lot of new and exciting things for them. Like, first of all, the one you're currently attending is the free YouTube sessions. You will find the link to my own playlist. These are all free sessions, and you will find the link in the description. Along with this, they are bringing to you special classes on the Unacademy platform. These special classes are also absolutely free. You will find a link to that too on my on the description, in the description of this video. Okay, this is the link to my profile. If you follow it, you will get notifications about my own special classes as well. In these special classes, I take grammar lessons, literature lessons, a lot of tests and quizzes, and also creative writing sessions. So, all of these topics are covered in the special classes as well. All right. With grammar, I have completed the entire CBSE syllabus for 10th standard, as well as some extra basics I have covered, like parts of speech and tenses. All right. So let's crack it and get on with today's topic, which is very much in demand. A lot of students have asked me to teach that, and there's not much clarity about it because it's a new topic, analytical paragraph. It's a new addition to your revised syllabus or your paper pattern, and hence there is a lot of confusion in the minds of students. They are not able to understand what to write, what basically is an analytical paragraph, what do you mean by that, how do you write it, what all things are required to write, what is the format of writing, and all such general questions are being asked. All right, so let's get on with it. First, I would like to just give a brief introduction to you about the channel that you're watching and the people who are running this channel, that is An Academy. So they are bringing to you top educators. Trust me, these educators, why I say these are top educators is because they have to clear a lot of rounds, give a lot of lectures to get selected and to be able to represent an academy in front of you, right? So they are very well filtered, very well trained to teach you here, and which makes it obvious that the content they are bringing to you, the knowledge that they're sharing with you, is also of a very great quality, right? So the combination, this amazing combination of top educators and this quality content gives you an amazing learning experience, right? So let's crack it and move ahead. So for those of you who are meeting me for the first time, let me introduce myself. My name is Neha Faispurkar. I am an English educator for 10th CBSE on An Academy. Otherwise, I also teach 9th and 10th students for biology. And by profession, I am a soft skills and a personality development trainer. I teach students I train students for their interview skills, for their group discussion skills. I train them for various kinds of English exams, ranging from competitive exams to entrance exams to campus recruitment, or even exams that help them go to other countries to study or to settle. So today's topic is the very much in demand analytical paragraph, something which is very unclear, something which is causing a lot of confusion in the minds of students and their parents equally. So do not worry. At the end of this session, you will be able to understand and master what is required in an analytical paragraph. I will tell you what an analytical paragraph is, what does it mean, what is the format, what you are expected to write, which areas will be marked, how many, what weightage does which area in the analytical paragraph, has been given, and what vocabulary do you use, how do you stand out from the crowd.
So because the question is going to be same for everyone, so all of this will be covered in today's session. And you need not worry at all. This is going to, after this you will actually have no confusion or doubt at all. And if you still have, you can obviously tell us in the comments. I'm always there to solve your doubts. So, as I was saying, an academy is India's largest learning platform, and it brings to you a lot of facilities for the students to prepare for their exams. So for this, they also have a subscription called the Plus subscription. This Plus subscription, you get daily life classes. In these daily life classes, it's exactly like your school, but in your school, you and your teachers or your educators are there in the same classroom. Here, you will be at your home, and the educator will be at their home. And but you will be studying together. You can chat with your educator during the class. You can engage with them in discussions, and you can ask your doubts. You will get a different tab to ask your doubts. You get this question tab to ask your doubts, and if there are MCQs that the educator wishes to ask you, you can answer live polls. You will get options, 4 or 5 options, and during the class you can answer these questions, right? You get a structured course. By structured course, I mean you start with getting PDF notes from your own educator which they have created, so that is authentic and easy to understand. Also, your course is revised and updated according to whatever CBSE brings in every year. So this year there have been a lot of changes, and your course will be according to that. Coming to the feature of live tests and quizzes, why this is important, especially for this year, is that you can get an idea about the questions, the kind of questions that are coming in, because the marking scheme has changed, the question pattern has changed, and stuff like that. Your syllabus has been reduced, and the pattern has been revised totally. So you also get an idea of how to manage your time in this new pattern of your exam, right? Coming to the biggest advantage, the unlimited access. Now, for example, if you miss some class, you need not go to your friend or your teacher to ask them to explain what happened or tell them what happened. You need not beg your friend for notebooks to copy down notes or anything. Whenever you are comfortable, all the live lectures are also available offline. You can sorry, they are also recorded, they are also available offline. You can download them, you can watch it anytime, anywhere, and any number of times. So whenever you are comfortable, you can watch it from anywhere, anytime. It is literally in your hands. Your course is in your phone, right? And any number of times. So this is the unlimited access that you get to your entire course, right? You also get a chance to study with all of these top educators that you see on your screen right now. These are the top educators on an academy. These are all masters in their own subject, experts of their own subjects, and a lot of students have studied from them. They're amazing faculty, this is, right? A lot of people also complained that mathematics and science is being given importance everywhere, obviously because it is tough. But then at the same time, while concentrating more on mathematics and science, social studies, Hindi and English languages, they are ignored or maybe taken a little lightly, more lightly. So here we must not forget that all of these subjects carry equal number of marks. So it is not going to, it's not fair to take any subject lightly. So you need not worry, all these main subjects are covered equally. Of course, if you find a subject tough, you may devote more attention to it, but that does not mean that you may devote less attention or less time to any other subject, right? All of them carry the same number of marks for your weightage, right? uh, does not matter if you use iOS or Android. Absolutely does not matter, because the Unacademy Learning app is present on the Apple App Store as well as the Google Play Store. Okay, so the first step you must do is to download this, and the second would be to log in and get the Plus subscription. Here you will be able to unlock unlimited access to your course, and your Plus subscription will start, right? We are also there on Telegram.
This is the Quest 10 CBSE group. Download Telegram. This is also there on iOS and Android both. Download Telegram, enter in your details, and then join this group, join this channel, which is Quest 10th CBSE, right? You will get notifications of all the educators who are there, who conduct their sessions, or maybe a quiz. So you need not miss anything. You can decide what you want to watch. They will be posting about their schedule, and you can accordingly plan your sessions, right? So this gives you the maximum advantage of accessing what any information or any lectures that you want. Coming to the cost, I would prefer that I would suggest that you prefer longer durations like 1 year or 2 year or 3 years, because as you keep increasing the duration, you keep increasing your savings also. And at the same time, when you use this code S Live, you get additional 10% off. All right. So the code is very easy to remember, S Live. And now let us begin with our topic. So why are we suddenly studying analytical paragraph? ये पहले तो नहीं था, तो अब क्यों हम पढ़ रहे हैं? I will just get back to you. So why we are studying this is that analytical paragraph has newly been introduced as a part of the creative writing section of the English paper of CBSE 10th board exams. आप में से काफ़ी लोगों ने पहले क्रिटिकल एनालिसिस किया होगा, कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा. बट इफ़ यू हैव डन दिस, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दिस बट अ लिटिल डिफरेंट एट द सेम टाइम. आई विल टेल यू व्हाई. So how many marks does this carry? Does it have a choice? How many words will we have to write? Right? So I will answer all of these questions. Like the analytical paragraph is of 5 marks. It's a 5-mark question. Okay, pretty easy. Once you get the hang of it, नया है तो डर लग सकता है, बट एक बार समझ गया कि क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या लिखना है या क्या लिखने से मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये बहुत इजी हो जाएगा. पूरी की पूरी ट्रेनिंग आपको एनालिटिकल पैराग्राफ की आज के सेशन में मिल जाएगी. ठीक है. तो ये है 5 मार्क्स का. ठीक है. Yes, you will get to choose between two topics. You will get a choice, A, yeah, or B. It will always be there, and it is to be written in 100 to 120 words. Okay, this is the range that you have to stick to. Do not exceed 120 words. Do not be there less than 100 words. Try and finish within 100 words. Okay, if you have a few more words to write, try and finish in 120 word, but that is all. You did not exceed your word limit at all. All right, and let's move ahead now. So as we have already discussed, the analytical paragraph is a new addition, or rather a modification to the English paper pattern of the 10 CBSE board exam. Okay, so I will really again request all of you that let there be no confusion about this. Let there be no fear about this. All right, let there be no anxiety about this. Okay, it is just a topic. You learn, you write, and you score. That's all there is to it. All right, so I am going to take care of this entire part, and these two parts are up to you. All right. So many students have started worrying about it, as it is not something they have attempted or been taught before. Online education is also proving to be a headache, because it is not giving as much
say satisfaction when taught in schools, but you need not worry, it is the same. Learning is learning, you can learn anyway. In fact, online education is more comfortable because you are at your own will. You can attend whenever you want, according to your comfort, according to your own preparation progress, राइट. सो आपको आज अगर इंग्लिश नहीं पढ़ना है तो आप कल पढ़ सकते हो. इट इज़ अप टू यू. कंपल्सरी नहीं है कि आज ही पढ़ना है, आज सेशन हो रहा है तो ऐसा नहीं है, राइट. सो डू नॉट बी अगेंस्ट ऑनलाइन एजुकेशन. इट इज़ अ वंडरफुल थिंग दैट टू हैपन टू द वर्ल्ड, राइट, एंड द स्टूडेंट्स एज वेल. सो देयर इज़ रियली नो नीड टू फियर इट. इट इज़ क्वाइट अ सॉर्टेड टॉपिक. बहुत ही सॉर्टेड है. नाम थोड़ा सा डर लग सकता है, एनालिटिकल पैराग्राफ बोलते हैं तब, बट ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सॉर्टेड है और बस इजी 5 मार्क्स आप इससे स्कोर कर सकते हो. बहुत सिंपल है. 5 मार्क्स जो मिलना है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. बहुत मेहनत नहीं लगती है 5 मार्क्स स्कोर करने के लिए, ठीक है. Yes, you can score full 5 marks in the analytical paragraph. This is magic. Yay! You can score full 5 marks in the analytical paragraph. You can refer to other sessions of other educators on an academy or anywhere you want. You can just see that everybody has said or stressed upon the same thing, that you can score entire full marks in the analytical paragraph question, right? So only thing you need to be careful about is the expectation from you. If you go to the CBSE sample paper answer key, you will find everything that is written for every question, your expectations. These expectations are being set by CBSE. I am not telling you out of my own will. These expectations are being set by CBSE, right? So, how many marks are being awarded for which part and how do you need to score these, you will learn all of it today. CBSE has also mentioned a couple of places where you can score marks. So they have given you weightage like half mark for such and such part, 1 mark for such and such part, 2 marks for such and such part. So it has all been prescribed by CBSE, right? I am no one in CBSE to tell you. I have read it. It is there documented. You can just go to the sample paper answer key and you can see what I am saying is true. All right. So why is mastering analytical paragraph important? कि ये इतना क्यों पढ़ना है, सिर्फ 5 ही तो मार्क्स है तो क्यों पढ़ना है, ऐसा कुछ लोगों का अगर एटीट्यूड है इस जगह पे, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये 5 मार्क्स जो हैं जब ये नहीं मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, राइट. हम एक एक मार्क के लिए तरसते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको परोसे जा रहे हैं 5 मार्क्स, राइट. दे आर बीइंग सर्व्ड टू यू ऑन अ प्लेटर. आपके सामने ये परोसे जा रहे हैं, तो इसको लपक लो, इसको ले लो, रख लो, राइट. ग्रैब दीज 5 मार्क्स. डोंट लेट इट गो कि अब क्या नया सीखूंगा, 10th स्टैंडर्ड तो है. नहीं, प्लीज़ डोंट हैव दिस एटीट्यूड. ये बहुत सिंपल 5 मार्क्स है, आपको आसानी से मिल सकते हैं. आपको परोसे जा रहे हैं ये 5 मार्क्स कि आप ये ले लो और आप हो कि मुझे भूख नहीं है बोल रहे हो. प्लीज़ ऐसा मत करिए. You can grab those 5 marks, right? Complete 5 marks as well, right? Second importance, which might not seem very important right now, but later after 10th standard or maybe after your 12th standard, for your graduation or your post graduation, anytime, if you plan to go abroad, if you plan to move out of India to study, to go somewhere for your higher studies, analytical paragraph is something that is a part of your exams that are required to go there, right? Biggest example is the IELTS exam. So IELTS is one of the easiest exams to crack, right? I am myself a trainer who trains students for IELTS. So it is International English Language Testing System, right? And this is one of the easiest exams. It gives you access to some universities in USA, very few, but most universities in UK, Australia and the Gulf also, and New Zealand as well, right?
So many opportunities are open when you go for the IELTS exam. All right, so if you wish to go abroad someday in the future by appearing for IELTS, analytical paragraph is something that you will have to master that time. And after learning so much, जब आप नई चीज़ वो टाइम पे सीखोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो अभी पढ़ना तो है ही, अभी तो कंपलसरी हो गया, आपके पेपर में आ गया है, तो पढ़ ही रहे हो तो इस चीज़ को ढंग से पढ़ो, ताकि आगे जाके अगर आपको ये करना पड़े तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. आपके लिए इट विल बी अ पीस ऑफ केक एंड यू विल सेव योर टाइम इन योर प्रिपरेशन दैट टाइम ऑल्सो, राइट. सो तब करने से अच्छा है अभी से कर लो. अगर आपका प्लान नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, अभी तो हमें कंपल्सरीली करना ही है. बोर्ड में तो 10th बोर्ड तो देनी है, उसमें तो करना ही पड़ेगा. दिस इज़ एन एडेड एडवांटेज कि अगर फ्यूचर में देना है तो आपको आसानी हो जाएगी. सो इट ओपन्स अ लॉट ऑफ गेट्स फॉर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, बाकी एग्जाम्स के जैसे नहीं, राइट. सो लेट अस मूव ऑन. एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ का मीनिंग आई रियली होप सबको पता है क्या है. मैं पैराग्राफ के मीनिंग पे नहीं जाऊंगी, आई विल डायरेक्टली जंप ऑन टू व्हाट इज एनालिटिकल. ठीक है, एनालिटिकल वर्ड से पता चलेगा आपको कि एनालाइज भी एक वर्ड है जो आपने काफ़ी बार सुना है, और एनालिसिस भी एक वर्ड है जो आपने काफ़ी बार सुना है. एनालाइज इज अ वर्ब, एनालिसिस इज अ नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑलराइट, अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ का एनालिसिस करना या किसी चीज़ को एनालाइज करना, मतलब उस चीज़ को आप ब्रेक डाउन करो, उस चीज़ को आप टुकड़े टुकड़े करो, राइट. ये ऐसा है, उसको ऐसा बनाओ, राइट, ताकि आप एक एक चीज़ अलग अलग करके समझ सको, राइट, अलग अलग करके समझ सको. ये ऐसे नहीं समझ में आ रही है क्या, तो ब्रेक इट इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. डिवाइड एंड रूल सबको पता ही होगा, राइट. तो डिवाइड एंड रूल में क्या लॉजिक था कि इन लोगों को डिवाइड करो तो ये अकेले अकेले जो हैं कमज़ोर हो जाएंगे और इनको रूल करना ईजी हो जाएगा. सेम लॉजिक यू हैव टू फॉलो हियर बट विथ अ प्योर इंटेंशन. उन लोगों का इंटेंशन प्योर नहीं था, आपका इंटेंशन यू हैव टू कीप इट प्योर नेचुरली, कि आप इसको तोड़ो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो ताकि ये समझने में आसान हो जाएगा, राइट. ये समझने में आसान हो जाएगा. जब ये सारे साथ में आते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुझे अलग अलग करके इसको समझाना है, राइट. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एनालिसिस, राइट. सो ब्रेक डाउन और मेक इट सिंपलर एंड अचीव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट, इन अ बेटर वे. ठीक है, इससे क्या, अब सम ऑफ यू में हैव डन क्रिटिकल एनालिसिस. मैंने बोला था कि पिछली क्लासेस में हम लिटरेचर में क्रिटिकल एनालिसिस करते थे, राइट. जिन्होंने नहीं किया होगा भूल जाइए, अब ढूंढने मत निकलना क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है, अब उसका काम नहीं है. जस्ट डोंट वरी, एग्जाम्स के बाद कभी देख लेना आपको इंटरेस्ट होगा तो, बट डोंट ब्रिंग इन समथिंग न्यू दैट यू डोंट हैव फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है, तो यहाँ पर इस एनालिटिकल पैराग्राफ में यू हैव टू एनालाइज, दैट इज ब्रेक डाउन समथिंग, व्हाट समथिंग, सम डेटा और इंफॉर्मेशन. आपको कोई डेटा या इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना है, सिंप्लीफाई करना है डेटा को. ठीक है, सो दैट इट इज अंडरस्टूड बेटर, राइट. ये डेटा और इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकता है? ये फॉर्म में हो सकता है लाइन ग्राफ के, या बार ग्राफ के, या पाई चार्ट्स में, या टेबल्स में, या हिस्टोग्राम, जो भी है, राइट. किसी ना किसी फॉर्म में ये डेटा और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, और आपको जो है इस इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना है, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है. आपको क्या करना है, इसको यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वर्ड्स. ये ग्राफ फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में रहेगा, आपको इसको कन्वर्ट करना है वर्ड्स में. ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर है कि एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ हम सबको पता है. एनालिटिकल क्या होता है? ये आया है एनालाइज या एनालिसिस से, राइट. इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करिए, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करिए, और जिससे कि आपको उसको सिंप्लीफाई करके उसको समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी. ठीक है,
दिस इज व्हाट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इज, एनालिसिस इज। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है? इसमें आपके कोर्स में आपको मिलेगा डेटा या इंफॉर्मेशन, अलग अलग फॉर्म में हो सकती है वो, जैसे कि लाइन ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट्स, टेबल्स एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने मतलब क्या करना है? आपको इन नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। हम बहुत आसानी से हमने सीखा था कि 243 को क्या बोलेंगे? 243। ये इतना ही सिंपल है जितना 243 को 243 में लिखना, राइट? इट इज एज सिंपल एज डूइंग दिस। डेटा को वर्ड्स में लिखो, नंबर्स को वर्ड्स में लिखो, ग्राफ जो दिख रहा है उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करो। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू। ऑलराइट, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। मार्क्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे स्कोर करना है वो ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगी, पर डरने की कोई बात नहीं है। एनालिटिकल पैराग्राफ ऐसा सुन के लगता है कि अरे बाप रे क्या आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि एनालिटिकल पैराग्राफ इजी क्यों है। एडवांटेजेस क्या है कि यू नीड नॉट वेस्ट टाइम फॉर्मिंग एनीथिंग इन योर माइंड। आपको ऐसे लिखना पड़ता था, आपको लेटर लिखना पड़ता था, तब आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ती थी, तो आपको सोचना पड़ता था कि मैं क्या लिखूँ, ये पॉइंट्स लिखूँ, इसके रीजंस ढूंढूँ, मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस ढूंढूँ, मैं इसको और किस वर्ड्स में लिख सकता हूँ, मैं ये सब सोचूँ, राइट? फिर मैं उसका सीक्वेंस फॉर्म करूँ मेरे दिमाग में। अगर मुझे ऐसे आ रहा है तो यार मेरे तो 2 ही पॉइंट हुए, मुझे तो और कुछ याद ही नहीं आ रहा, और याद करो और सोचो, रफ में लिखो, उसको फेयर करो। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको इसकी नीड ही नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू वेस्ट टाइम फॉर्मिंग एनीथिंग इन योर माइंड, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये जो पार्ट है दिमाग में कुछ फॉर्म करना, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड हियर, राइट? यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। इससे क्या होता है? यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अदर आंसर्स। ये जो टाइम इससे बच रहा है एनालिटिकल पैराग्राफ में, वो बाकी आंसर्स के लिए जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, या आपको अगर कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जिसमें आपको याद नहीं आ रहा है, उसके लिए यूज़ करिए, राइट? यू डोंट इवन हैव टू रिमेंबर और लर्न एनीथिंग। ये लो, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको कुछ भी याद भी नहीं रखना है और आपको कुछ रट्टा भी नहीं मारना है कि मैं लर्न करके जाऊंगा, ये बोल दूंगा। नो नीड ऑफ दैट, राइट? याद भी नहीं करना है और याद रखना भी नहीं है, राइट? कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें, इसीलिए आई एम सेइंग दीज आर इजी 5 मार्क्स। ये सारा एफर्ट जो है ये ज़ीरो लग रहा है इसमें, राइट? डेटा और इंफॉर्मेशन हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू यू ऑन अ प्लेटर। अरे जिस चीज़ को तुमको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है वो ऑलरेडी तुम्हें ग्राफ फॉर्म में दिया जा चुका है, तो ये तो दिया ही हुआ है, अलग क्या करना है तुमको, राइट? ये तो परोस दिया गया है क्वेश्चन में तुमको, ये लो भाई इस पे एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो, तो ये तो परोसा ही हुआ है, बस इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है तुमको। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हो। बस आपको ध्यान देना है उन चीज़ों पे जो मैं आपको बता रही हूँ, राइट? सो दिस इज गोइंग प्रोवाइडेड टू यू ऑन अ प्लेटर कि ये लीजिए 5 मार्क्स है, ये स्कोर कर लीजिए, राइट? ये आपको मिल रहा है और तुम प्लीज मत बोलना कि नहीं मुझे भूख नहीं है इसको ले जाओ। डोंट डू दैट, ला दे और लेकर आ, राइट? यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड टूवर्ड्स एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है? कोई भी न्यू चीज़ आती है ना तो देर इज़ ऑलवेज रेजिस्टेंस, स्पेशली स्टूडेंट्स कुछ नया सीखने को देखते नहीं है कि यार अब क्या करेंगे। as it is everybody is frustrated by staying at home because of this pandemic that is going on, उसमें आप नई चीज़ें ऐड करोगे, कुछ और स्टूडेंट्स को नया करने बोलोगे। आई अंडरस्टैंड इट माइट गेट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, बट प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारे मार्क्स डिपेंड करते हैं उस पर। द बोर्ड हैज़ ऑलरेडी डन सो मच फॉर यू दैट दे हैव रिड्यूस्ड द सिलेबस so much. Most of your paper, most of the things in your different subjects have been converted to MCQs, so they have made it very easy for you. So if they have added a new topic, please do not be disheartened or
डू नॉट वरी और डू नॉट टेक इट लाइटली कि नहीं यार नहीं करेंगे, छोड़ना, बाकी सब एमसीक्यू में है तो ये एनालिटिकल पैराग्राफ क्यों सीखना है, ऐसा मत करो प्लीज़। ठीक है, सो आपको जो परोसा जा रहा है उसको बढ़िया से लपक लो और खाना शुरू कर दो। ठीक है, और एडवांटेजेस एडिशनल क्या है, एवरीथिंग इज रेडी इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे मैंने बोला परोसा गया है सब कुछ। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ बेटर वोकैब्युलरी, और ये भी स्पेसिफिक वोकैब्युलरी है। यू नीड सम स्पेसिफिक वोकैब्युलरी, जो मैं आपको बताऊंगी आज ही के सेशन में। मैं आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में जो आपको ज़रूरत पड़ेगी जिस वोकैब्युलरी की, वो भी मैं आज आपको बता के जाऊंगी। आप ये सेशन जो है वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा ख़त्म होने के बाद, तो आप उसको कभी भी एक्सेस कर लो, बार बार रिवाइंड करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको चाहिए कि आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है, तो जब मैं वोकैब्युलरी पे आऊँगी तो आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले लो एंड यू कैन यूज़ इट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर प्रिपरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ की स्पेसिफिक वोकैब्युलरी भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कि क्या वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जिससे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जनरल वोकैब्युलरी का यहाँ पर कोई काम नहीं है, स्पेसिफिक वोकैब्युलरी का ही काम है। वोकैब्युलरी बिल्डिंग के लिए अब हमारे पास टाइम बचा नहीं है कि हम जनरल वोकैब्युलरी अभी बिल्ड करने लग जाए। करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बड़ी बात नहीं है, सोने पे सुहागा। लेकिन स्पेसिफिक वोकैब्युलरी बिल्ड करनी पड़ेगी, वो भी बहुत मुश्किल नहीं है, सारे वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, तो एक दो भी अगर आपको याद है तो आपको बाकी के अपने आप याद आ जाएंगे। ठीक है, सो इट नीड्स अ वेरी स्पेसिफिक वोकैब्युलरी for analytical paragraph, and that vocabulary I am going to take care of. ठीक है, you can already try and understand the scoring areas, ये दिए हुए हैं CBSE ने, ये स्कोरिंग एरिया CBSE ने खुद वहाँ पर लिख दिए हैं आंसर की में, कि यहाँ ये लिखोगे तो पक्का ये मार्क्स मिलेंगे, ये वहाँ पर लिख चुके हैं CBSE, तो वो मार्क्स तो पक्के हैं ही आपके, राइट। What is required? Only simple analysis and comparison is needed, right? डेटा दिया रहेगा, उसका एनालिसिस है, सिंप्लीफाई करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखने जाओगे, राइट, तो वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देने वाले, जितने मार्क्स बनते हैं उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। सो नो, देयर नो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोकैबुलरी और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, कंपेयर करो, एनालाइज करो, ख़त्म करो बात को। ठीक है, यू कैन यूज़ ईजी लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन प्रॉपरली इनफ, क्योंकि आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, nobody is going to ask you to explain a lot, right? Explanation is really not needed much. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको खुद से कुछ नहीं लिखना है, खुद से कुछ नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में है वही लिखना है, वर्ड्स में, नंबर्स रहेंगे, ग्राफ रहेगा, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करो, अपने ओपिनियन मत दो, देर इज़ नो नीड टू गिव योर ओन ओपिनियंस। यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है कि हम सोचने लगते हैं कि यार अपना ओपिनियन, योर ओपिनियन वाले जब क्वेश्चंस आते हैं, राइट, तो हम सोचने लगते हैं यार मैं जो बोल रहा हूँ, मैं सही में फ़ील कर रहा हूँ, मैं वो लिखूँ या जो सही लगे वो लिखूँ। अच्छा, जो फील कर रहे हैं फिर उसको फॉर्म करो इंग्लिश में, ये सब झंझट में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई आपसे आपको ओपिनियन नहीं मांग रहा है, राइट। CBSE विल सिंपली से तेरे से पूछा तो क्यों बता रहा है, तो आपसे ओपिनियन कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, राइट। देयर आर 3 पार्ट्स टू दिस ऑब्वियसली, जैसे जनरली रहता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, राइट। सिंपल, आधा टेंशन यहाँ ख़त्म कि क्या करना है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, इतना ही है। अलग अलग समझाऊंगी, इंट्रो में क्या रिक्वायर्ड है, बॉडी में क्या रिक्वायर्ड है और कंक्लूजन में क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, इतना समझ लो कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, एंड ईच विल बी इवैल्यूएटेड सेपरेटली, ईच विल बी इवैल्यूएटेड सेपरेटली, हर एक के लिए अलग अलग मार्क्स हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इंट्रोडक्शन में ये है कि आपको क्वेश्चन को जो है पैराफ्रेज करना है, पैराफ्रेज द क्वेश्चन,
इसका मतलब है कि क्वेश्चन में अगर जो कुछ लिखा हुआ है उसी को, ये क्वेश्चन फॉर्म में लिखा है, उसी को आपको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। यू हैव टू राइट इट इन अ सेंटेंस फॉर्म। पैराफ्रेज द क्वेश्चन, सबसे इजी बात है, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, उसी को थोड़ा सा इधर उधर करके आपको दूसरा सेंटेंस लिखना है। इतना ही करना है, इतना ही करना है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में यही करना है, और इस चीज़ के लिए बने बनाई चीज़ जो हमको बस दूसरी तरीके से लिखनी है, उसके लिए सीबीएसई हाफ मार्क्स दे रहा है, राइट। हाफ मार्क इज फॉर करेक्टली पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सीबीएसई बोल रहा है, उन्होंने अपने आंसर की में ये लिखा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो, राइट। यू हैव टू पैराफ्रेज द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को करेक्टली पैराफ्रेज करिए, उसी को दोबारा से लिखिए, राइट, सेम चीज़ को दोबारा से लिखिए, एंड हाफ मार्क जो है वो पक्का हो जाता है, राइट। क्या करना है आपको शुरुआत में? यू हैव टू स्टार्ट विथ टेलिंग व्हाट द इंफॉर्मेशन इज अबाउट, ठीक है। अपने एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करो इन ब्रीफ, थोड़े से डिटेल्स ऐड करो बट नॉट टू मैनी। एग्जाम्पल भी बताऊंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है कि बिलो इज द ग्राफ शोइंग वाटर कंजम्पशन इन द वर्ल्ड फ्रॉम द ईयर 1900 टू द ईयर 2000, राइट। सो आपको क्या इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा कि द गिवन ग्राफ और द प्रोवाइडेड ग्राफ, वॉट एवर द गिवन ग्राफ शोज or depicts the global water consumption from the year 1900 to 2000। इतना ही लिखना था, राइट। आपने डिटेल भी दे दी, आपने पैराफ्रेज भी कर दिया, एनालिसिस को आपने डिटेल में, आपने ब्रीफ में एक डिटेल दे दी और आपने पैराफ्रेज भी कर दिया। यहाँ पे आपका हाफ मार्क जो है ये पक्का हो गया, 5 में से हाफ मार्क मिल गए, राइट। दोबारा से बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को पैराफ्रेज करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू पैराफ्रेज द क्वेश्चन, ये ही मेन चीज़ है आपके इंट्रोडक्शन की, एनालिटिकल पैराग्राफ की, ठीक है। बॉडी, बॉडी में क्या है, आपको शो करने पड़ेंगे ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स जैसे हम फैशन का ट्रेंड बोलते हैं, तो ट्रेंड होता है कोई पैटर्न या कोई चेंज, राइट। दिस इज कॉल्ड अ ट्रेंड, ये ट्रेंड चल रहा है आजकल, राइट। तो ये जो नया चेंज आया है ये चल रहा है, थोड़े दिन बाद ट्रेंड बदल जाएगा, तो ये जो चीज़ है वो बदल जाएगी, इट विल चेंज, दिस पैटर्न विल चेंज, ठीक है। अब क्या होगा, आपको 4 ट्रेंड्स बताने पड़ेंगे, मिनिमम 4 ट्रेंड्स बताने पड़ेंगे। ट्रेंड्स कैसे होते हैं वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल पे, डोंट वरी, ठीक है। 4 ट्रेंड्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तो आपके 2 मार्क्स और पक्के हो जाएंगे। हमने हाफ मार्क किया था इंट्रोडक्शन का, प्लस 2 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाएंगे अगर आप 4 ट्रेंड्स लिखोगे तो। अलग से बनाने नहीं है ट्रेंड्स, आपको आपके ग्राफ में लिखे हैं उसी को वर्ड्स में लिखना है, दोबारा बोल रही हूँ, ठीक है, उसी को लिखना है। या फिर देर आर टू आर्ग्यूमेंट्स, देर आर टू आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एक वर्डेड क्वेश्चन आ सकता है, वर्डेड क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कोई टॉपिक होगा जिस पे आपको आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करनी होगी, ठीक है। वहाँ आपको खुद से लिखना है ज़रूर, वहाँ आपके ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उधर क्या होगा कि आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स मिनिमम मेंशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ 4 ट्रेंड्स हैं, आप बोलोगे 4 ट्रेंड्स हैं यहाँ पे, और वहाँ तो 2 ही आर्ग्यूमेंट्स है, लेकिन बेटा एडवांटेज मैं ये बताती हूँ, 4 ट्रेंड्स जो है ना वो आपके सामने हैं, वो आपके सामने है, और ये जो 2 आर्ग्यूमेंट्स है वो आपको बनानी पड़ेगी, आपको लानी पड़ेगी, right? So 2 arguments writing on your own will get may be difficult for some people, but 4 trends which are right in front of your eyes
उसी को वर्ड्स फॉर्म में लिखना इज वेरी इजी, कोई भी लिख सकता है, राइट। एंड 2 मार्क और पक्के कर सकता है। ये 2 मार्क जो हैं ये भी सीबीएसई ने ही बोले हैं, राइट। उसी डॉक्यूमेंट में ये भी मेंशन किया हुआ है कि 2 मार्क्स जो है वो 4 ट्रेंड्स या 2 आर्ग्यूमेंट्स के लिए होंगे, ठीक है। आपका चॉइस है, अल्टीमेटली पेपर आपको देना है कि आपको आर्ग्यूमेंट्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है या ट्रेंड्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। माय सजेशन पर्सनली वुड बी एज अ पर्सन ऑफ दिस फील्ड कि आप ट्रेंड्स वाला क्वेश्चन करिए, क्योंकि क्या है, आर्ग्यूमेंट्स वाले में आपको 100 to 120 वर्ड्स बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाएगा, यू हैव टू थिंक एंड राइट। बट फॉर द ट्रेंड्स क्वेश्चन यू नीड नॉट वेस्ट एनी टाइम, एवरीथिंग इज रेडी इन फ्रंट ऑफ यू, बस उसको आपको लिखना है। 4 लगते ज़्यादा है लेकिन 4 जो है वो आधे टाइम में हो जाएंगे, वो 2 आर्ग्यूमेंट्स, इंट्रोडक्शन, आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन करते करते टाइम निकल जाएगा। 100 to 120 वर्ड्स होना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ जो है आराम से हो जाएंगे, ठीक है। हम देखेंगे कैसे, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट्स इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल डिस्कस अ लिटिल लेयर, नहीं लेटर होता है, राइट। ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑब्वियस सी वैसे बात है कि द बॉडी मस्ट बी द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर आंसर, राइट। हर टाइप के क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चन में बॉडी जो है ये आपके आंसर का सबसे बड़ा पार्ट होती ही है, ऑब्वियस सी बात है। बॉडी में क्या करना है शुरुआत में, दिस इज द स्टार्टिंग, व्हेन यू स्टार्ट द बॉडी, ठीक है। यू हैव टू elaborate your introduction and add more details, ठीक है, एंड ऐड मोर डिटेल्स। इंट्रोडक्शन आपने 1 या 2 लाइन में लिखा था, अब आपको उसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा 1 और 2-4 डिटेल ऐड करके उसी इंट्रोडक्शन को आप वापस से लिखो। जैसे मैंने क्वेश्चन को ही पैराफ्रेज किया था पहले कि बिलो इज द ग्राफ, बिलो इज द डेटा फॉर वाटर कंजम्पशन इन द वर्ल्ड फ्रॉम द ईयर 1900 to 2000, ये था क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या किया, द गिवन ग्राफ displays, right, or depicts the global water consumption from the year 1900 to 2000, ये हुआ मेरा इंट्रोडक्शन खत्म। when I'm starting the body, in the given graph this information is being provided, या global water consumption, information about global water consumption is being provided for the year 1900 to 2000 in, उसका यूनिट लिख दो, क्या यूनिट में मेंशन किया हुआ है, राइट। या किसी कंट्री का अगर स्पेसिफिक नाम है तो वो कंट्री का नाम लिख दो, यहाँ आपको चालू करना है, ठीक है। दिस इज वेयर यू एक्चुअली एक्सप्लेन व्हाट यू सी इन द डेटा। इसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे कि आपको डेटा में क्या दिख रहा है। द की हियर इज टू यूज कॉन्ट्रास्टिंग और कंपेयरिंग टर्म्स लाइक इंक्रीज, डिक्रीज एट्सेट्रा। आपको अगर जैसे मान लो ग्राफ दिए हैं, राइट, ग्राफ दिए हैं तो आपको बताना है कि इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, तो ये क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यही यहाँ पर लिखना है, इतना ही लिखना है, राइट। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रास्टिंग और कंपेयरिंग टर्म्स है ये भी सीबीएसई ने ही प्रिस्क्राइब किया है कि ये ऐसे वर्ड्स आपको यूज करने हैं एनालिटिकल पैराग्राफ में। जो आप 4 ट्रेंड्स बोल रहे हो ना, जो जब से मैं बोल रही हूँ ट्रेंड्स ट्रेंड्स ट्रेंड्स, ये ही आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्ट्रास्टिंग और कंपेयरिंग टर्म्स यूज करके, ठीक है। सीक्वेंस को स्टिक करिए, ठीक है। ये टिप है मेरी, रूल नहीं है ये मेरी टिप है। हैफेज़ार्डली मत लिखिए, अगर आप इस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हैं ऐसे तो यह इसके बारे में लिखिए, यहाँ से यहाँ जंप मत करिए, राइट। यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ जाइए और यहाँ से यहाँ जाइए, राइट। डू नॉट जंप, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, खिचड़ी मत बनाओ। एग्जामिनर परेशान हो जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स ही नहीं देगा, पढ़ेगा ही नहीं तो मार्क्स भी नहीं देगा। Make it easy for your examiner, right? Make it easy for your examiner. And yourself also. तुम
यहाँ से यहाँ गए, अरे बीच वाला छूट गया, कौन सा छूट गया था पता नहीं मुझे, अगर बहुत सारे, ये तो 4 ही हैं, बहुत सारे ग्राफ्स होंगे यहाँ पर, तो क्या करोगे, आपको कैसे याद रहेगा कौन सा आपने कर लिया और कौन सा छूट गया है। अच्छा, आपके लिए भी बेटर है कि आप सीक्वेंस वाइज जाओ, तो कुछ मिस नहीं होगा आपका, राइट। तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा एलैबोरेट करो, एक आधा और डिटेल जो होगी वो डाल दो उसमें, ठीक है। और फिर अब आपका काम आता है कि आपको 4 ट्रेंड्स लिखने हैं, मिनिमम 4 ट्रेंड्स लिखने हैं, आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, बट 4 काफ़ी है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको डेटा को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन का मतलब है नंबर्स से वर्ड्स में लेकर आना है उसको, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स और कंपेयरिंग टर्म्स यूज़ करना ज़रूरी है कि कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई है, कोई चीज़ डिक्रीज़ हुई है, और इसी टाइप की हमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ के इर्द गिर्द वाली ही वोकैब्युलरी डेवलप करनी है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स जो हैं वो इन्हीं पे मिलने वाले हैं, कॉन्ट्रास्टिंग और कंपेयरिंग टर्म्स पे ही मार्क्स मिलने वाले हैं। जो 2 मार्क्स हैं वो इन कॉन्ट्रास्टिंग और कंपेयरिंग टर्म्स पे ही मिलने वाले हैं, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे, हम डिटेल में जाएंगे कि कैसे ट्रेंड्स लिखने हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में क्या एक्सपेक्टेड है वो बता देती हूँ, ठीक है। कंक्लूजन में क्या करना है आपको, कंक्लूजन में आपको पैराफ्रेज करना है ट्रेंड्स और आर्ग्यूमेंट्स को। हमने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन को पैराफ्रेज किया था, राइट। अब बॉडी में हमने ट्रेंड्स लिखे और कंक्लूजन में हमको जो है इन ट्रेंड्स को पैराफ्रेज करना है, ठीक है। एक कंक्लूजन लेकर आओ कि यार ओवरऑल या लास्टली मैं ऐसा ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, इतना ही बताना है। इन वेरी ब्रीफ जस्ट समराइज द ट्रेंड्स और आर्ग्यूमेंट्स वॉट एवर इन 2 or 3 लाइन्स, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, 2 और 3 लाइन्स के ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। इसके लिए भी हाफ मार्क आपको मिलता है, राइट। दिस रिक्वायर्स द कंक्लूजन ऑफ द डेटा, सिर्फ कंक्लूजन ऑफ द डेटा चाहिए है, नो रीजंस नो कॉन्सिक्वेंसेस, कोई ज़रूरत नहीं है। पानी का कंजम्पशन अगर बढ़ रहा है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसलिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, दैट्स द रीज़न the water consumption is also increasing. No need at all. Nobody has asked you to write your own opinions. वहाँ पर मांगे ही नहीं जाते आपके खुद के opinions at all. There is no need. सिर्फ डेटा का कंक्लूजन करना है, जो डेटा दिया है उसी को कंक्लूड करो, उसी को पैराफ्रेज कर दो, ठीक है, कि आपको क्या नज़र आ रहा है ओवरऑल, उतना ही लिखना है आपको, ठीक है। आप ये लिख सकते हो कि शुरुआत के कुछ सालों में जैसे इंक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं था, बट इन लेटर ईयर्स या मे बी आफ्टर 1990 द कंजम्पशन ऑफ वाटर स्टार्टेड इंक्रीजिंग रैपिडली या शार्पली, वॉट एवर, इतना ही लिखना है, नथिंग मोर देन दैट, ऑलराइट। बहुत सिंपल चीज़ है, इसको ध्यान रखो, ये किसी ने मांगा ही नहीं है, राइट। सो ओपिनियन और ज्ञान बिल्कुल वहाँ पर नहीं देना है आपको, क्लियर है, बिल्कुल भी ओपिनियन और ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। मूविंग ऑन, सो नाउ दैट वी हैव लर्नड व्हाट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इज एंड व्हाट इज बेसिकली एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस, मैंने बता दिया कि इंट्रोडक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है कि आप क्वेश्चन को पैराफ्रेज करिए, ठीक है, 1 या 2 लाइन में उसको लिखना है, उसके लिए हाफ मार्क दिया हुआ है। बॉडी में क्या एक्सपेक्टेड है कि आप 4 ट्रेंड्स एक्सप्लेन करें, उन 4 ट्रेंड्स में आपको 2 मार्क मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, जब आप कंपेयरिंग और कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स यूज़ करेंगे तब। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप वो 4 ट्रेंड्स में कंपेयरिंग और कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स यूज़ करें, ठीक है। कंक्लूजन में क्या एक्सपेक्टेड है कि आप उन ट्रेंड्स को पैराफ्रेज कर दें, आप उन ट्रेंड्स को पैराफ्रेज कर दें, ओवरऑल डेटा के बारे में आपको क्या लगता है वो 2 या 3 लाइन के ऊपर आपको कंक्लूजन नहीं करना है उस चीज़ का, उतना ही लिखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको वहाँ पर ओपिनियंस नहीं देने हैं, कोई ओपिनियन आपको नहीं देना है वहाँ पर, राइट। आपको बस उस डेटा को पैराफ्रेज करना है, कोई रिजल्ट, कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई रीजंस कुछ भी मेंशन नहीं करना है और आपके खुद के ओपिनियंस भी मेंशन नहीं करने हैं आपको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हो गए यहाँ पर 3 मार्क्स, हाफ
2.5, ये हो गए 3 मार्क्स। अब जो बचे हुए 2 मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे आपकी वोकैबुलरी और आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से उस चीज़ को लिख रहे हो, सामने वाले के लिए कितना क्लियर और इजी बना रहे हो उस चीज़ को। सामने वाले को दिखना चाहिए कि आपको डेटा समझ में आया है, राइट। आपको ही अगर डेटा ढंग से नहीं समझ में आया, अगर या मान लो समझ आ भी गया, तो आपको वो ढंग से सामने वाले को बताना आना चाहिए। दिस इज अ साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। सिर्फ आपको डेटा समझ के कोई फायदा नहीं है, आपको ये आना चाहिए कि आपने जो डेटा समझा है वो डेटा आपको पेपर में लिखना है। इट शुड कम ऑन पेपर, वॉट एवर यू हैव अंडरस्टूड, तब जा, और वो लिखो सिर्फ अपनी भाषा में नहीं, ऐसी भाषा में जो एग्जामिनर को भी समझ में आए। सो वॉट यू हैव अंडरस्टूड यू हैव एक्सप्लेन्ड, right, and the examiner also understands, only then the entire communication cycle will complete and you will get the marks. If whatever you say is not understood by the examiner, then there is no point in writing all of that, right? उनको ही नहीं समझ में आया तो आपको क्या मार्क्स मिलेंगे, right? तो आप समझो और लिखो ऐसे कि सामने वाले को भी समझ में आ जाए, ठीक है। So let us now move ahead and learn how to score the remaining marks. This part that is coming now is going to set you apart from the rest of the crowd. देखो सबको सेम क्वेश्चन मिलने वाला है, भले ही सेट अलग हो, लेकिन जिस जिसको आपका सेट मिला है उन सबको तो सेम क्वेश्चन आने वाला है। और सबके लिए रूल्स सेम है कि इंट्रोडक्शन के लिए ये लिखना है, बॉडी में लिखना है, कंक्लूजन में ये लिखना है। वो बात तो है, 3 मार्क्स तो कोई भी स्कोर कर लेगा, बट आगे के जो 2 मार्क्स हैं, दीज 2 मार्क्स दीज आर गोइंग टू सेट यू अपार्ट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। तो ये जो वोकैबुलरी की मैं बात कर रही हूँ, ये आपको जो डेवलप करनी है, कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग वोकैबुलरी, इसको डेवलप करके आप जो है बाकी लोगों से अलग हो सकते हो। बाकी के जो 2 बचे हुए मार्क्स हैं उनको आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, राइट। So here the main role will be played only and only by the language and the vocabulary that you use, ठीक है। Everybody is being provided with the same questions, same information and data, राइट। जैसे मैंने अभी बोला कि सेट चाहे अलग अलग हो, 3 अलग अलग सेट हो या 4 सेट हो, डजेंट मैटर, बट आपके सेट वालों को तो सेम क्वेश्चन मिल रहा है, राइट। और बाकियों को भी इक्वली क्वेश्चंस मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का टफ होता है किसी का कम। क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस, जिसकी किस्मत में जो आए, राइट। सो आपको अगर अलग बनना है, 3 मार्क्स तो कोई भी स्कोर कर सकता है, बट जो बचे हुए 2 मार्क्स है उसका पूरा खेल है यहाँ पर, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या करना है, मैं हर चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है। इंट्रोडक्शन में आपको यूज़ करनी है क्रिस्प और प्रोफेशनल लैंग्वेज विच इज़ टू द पॉइंट। क्रिस्प और प्रोफेशनल लैंग्वेज विच इज़ टू द पॉइंट। यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको 1 और 2 लाइन्स में ही लिखना है, राइट। तो नेचुरली यू हैव टू बी टू द पॉइंट। इंट्रोडक्शन में आप यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर सकते, टू द पॉइंट बात करो और बहुत ही क्रिस्प और प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करना है आपको। नो एक्स्ट्रा मार्क्स आर बीइंग अवॉर्डेड फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा दैट यू डू। उसके आगे आप लिखोगे तो आप अपना टाइम, अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हो। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करिए। ये समझ के चलो कि ये कंपलसरी है कि मुझे टू द पॉइंट ही बात करनी है, ठीक है। यू ओनली हैव टू पैराफ्रेज द क्वेश्चन, डू नॉट ऐड एनीथिंग। कुछ ऐड मत करिए अपने मर्जी से, लेकिन कुछ स्किप भी मत करिए, कुछ स्किप भी मत करिए। आपने सिर्फ अगर जाके लिख दिया कि द गिवन पैराग्राफ, द गिवन ग्राफ डिपिक्ट्स ग्लोबल वाटर कंजम्पशन इन ग्लोबल वाटर कंजम्पशन या वाटर कंजम्पशन इन द वर्ल्ड, खत्म। आपने मेन बात मिस कर दी कि किस ड्यूरेशन के लिए वो ग्राफ दिया गया है। 1900 से 2000 के लिए दिया गया था, राइट। सो आपको ये स्किप भी नहीं करना है, बड़े ध्यान से याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। कुछ ऐड भी नहीं करिए और कुछ स्किप भी नहीं करिए, ठीक है। जितना दिया है उतना ही आपको करना है, ठीक है। सैम्पल इंट्रोडक्शन देती हूँ। In the given graph, information about worldwide consumption of water in 2 different countries has been depicted. चलो ठीक है, in 2 different countries has been depicted, ये एक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया।
इसको मैं बेटर कैसे बना सकती हूँ? गिवन को मैं चेंज कर सकती हूँ सप्लाइड या प्रोवाइडेड में, राइट? मैं बोल सकती हूँ इन द प्रोवाइडेड ग्राफ या टेबल चार्ट, जो भी है ये आप पे डिपेंड। देखो, गिवन, सप्लाइड, प्रोवाइडेड, दिस डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसकी क्वालिटी क्या बना रहे हो, राइट? ग्राफ, चार्ट, टेबल एटसेट्रा ये जो भी रहेगा ये आएगा क्वेश्चन पे, ये तो आप नहीं बदल सकते, जो आया है वही लिखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन अबाउट, ये भी जो पूरा पार्ट है ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये भी आप नहीं बदल सकते, ठीक है? हैज बीन तक जो आया, फिर डिपिक्टेड ये आप बदल सकते हो, ये डिपिक्टेड जो है ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप डिपिक्टेड लिखो, रिप्रेजेंटेड लिखो, डिस्प्लेड लिखो, शोन लिखो, एग्जिबिटेड लिखो, दिस विल अगेन डिपेंड ऑन यू, राइट? सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन में, दो चीज़ें आप बदल सकते हो, दो चीज़ें आप नहीं बदल सकते, राइट? दो चीज़ें आपको क्वेश्चन की वैसी रखनी है, पैराफ्रेज करना है तो क्वेश्चन से ही उठा के उसको यहाँ पर चिपकाना है हमें, पर दो चीज़ें आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है कि आप उस चीज़ को कैसे लिख रहे हो। गिवन, सप्लाइड, प्रोवाइडेड, डिस्प्लेड, इस सब चीज़ को आप, एग्जिबिटेड, ये सब आप वहाँ पर लिखो, ठीक है? वहाँ पर आपकी वोकैबुलरी काम करेगी, दिस डिपेंड्स ऑन यू। ग्राफ, चार्ट, टेबल क्वेश्चन में जैसा है वैसे ही करना पड़ेगा। किस चीज़ के बारे में है वो भी क्वेश्चन का क्वेश्चन ही है, ये तो क्वेश्चन से ही आपने चिपकाया है यहाँ पर, राइट? लास्टली डिपिक्टेड, शोन, रिप्रेजेंटेड, एग्जिबिटेड, डिस्प्लेड, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई मीन बाय द क्रिस्प एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज, एंड इट इज़ टू द पॉइंट। इसके आगे नहीं करना है कुछ भी, इसके आगे नहीं करना है कुछ भी। तो ये जो है ऑर्डिनरी पैराग्राफ था, ये ऑर्डिनरी इंट्रोडक्शन को मैं यहाँ पर अपनी वोकैबुलरी से थोड़ा सा क्रिस्प बना रही हूँ, राइट? दिस इज गोइंग टू फेच यू द एक्स्ट्रा 2 मार्क्स, राइट? ये ऐसे चेंजेस जो हैं ये आपको एक्स्ट्रा 2 मार्क्स बताएंगे, ठीक है? यहाँ पर हुआ इंट्रोडक्शन। अगेन आई विल टेल यू, 2 थिंग्स इन द इंट्रोडक्शन आर इन योर कंट्रोल, 2 थिंग्स इन द इंट्रोडक्शन आर डायरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चन। ये दो चीज़ें जो क्वेश्चन में से है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आपको वैसा का वैसा लिखना है, तो इसमें तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, जैसा दिया है भाई वैसा ही लिखना है मुझे। बचे हुए दो चीज़ें जो है वो भी आप सिंपल लैंग्वेज में लिखो तो भी ठीक है, और आप क्रिस्प लैंग्वेज जरा जो बेटर करो वो भी। आपने सिंपल लैंग्वेज लिख लिया, हाफ मार्क तो पक्का है, बट इफ़ यू यूज़ अ क्रिस्प लैंग्वेज, इफ़ यू यूज़ अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, इफ़ यू यूज़ बेटर वोकैबुलरी, गिवन को आपने सप्लाइड या प्रोवाइडेड जैसी चीज़ें लिखी, द वर्ड्स साउंड बेटर, द इंट्रोडक्शन लुक्स बेटर, right? And the examiner also knows that you have great vocabulary, you will create an impression right at the start। तो बाकी के जो बचे हुए मार्क्स हमें स्कोर करने हैं वो यहाँ पर उसका जुगाड़ जमना चालू हो जाता है, राइट? लेट अस मूव अहेड नाउ। अब बॉडी में हम आते हैं, राइट? बॉडी में हमें ट्रेंड्स एक्सप्लेन करने हैं, राइट? बॉडी में हमें ट्रेंड्स एक्सप्लेन करने हैं। अब अगर मैं फ्रूट्स के प्राइसेस लेती हूँ, ठीक है? फ्रूट्स के प्राइसेस लेती हूँ एक एवरेज हाउस होल्ड में, ठीक है? फ्रूट्स एवरेज हाउस होल्ड में कंजम्पशन, ठीक है? वीक में एक फ्रूट कितना है? सो फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स अगर हैं, बनानाज हैं और ऑरेंजेस हैं, ठीक है? तो 2000, in the year 2000, in a week 10 apples were being consumed, in a week 7 bananas were being consumed, and in a week say 4 oranges were being consumed. In the year 2005, say apples were still 10, bananas increased to 12, and oranges increased to say 21, all right? 2010 में apples increased to say for example 14, ठीक है? 14,
bananas increased to 14, oranges again decreased to 2। ठीक है, अगर ये मुझे डेटा दिया गया एक टेबल फॉर्म में फॉर एग्जांपल, तो मैं अब इसी को आगे एक्सप्लेन करती जाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, अब क्या होगा, मैं लिख सकती हूँ जब इंक्रीज हो रहा है, राइट, इंक्रीज हो रहा है, जैसे द कंजम्पशन ऑफ बनानास रोज फ्रॉम 7 इन अ वीक इन 2000 टू 12 इन अ वीक इन 2005। राइज का मैंने ये वर्ब्स है सारे, राइट, एंड दीज विल चेंज अकॉर्डिंग टू टेंसेस। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने यूज किया राइज। जंप किसने किया है, बनानास ने जंप किया है 2007 से लेके 12 पे, तो आप जंप यूज करो बिकॉज गैप ज्यादा है यहाँ पर, राइट। ग्रो, क्लाइंब, go up, consumption went up, consumption grew, climbed, increase, very simple। रॉकेट, इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो कि कंजम्पशन ऑफ ऑरेंजेस रॉकेटेड फ्रॉम 4 इन 2000 टू 21 इन 2005। तो ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा, तो इसको आप रॉकेट बोल सकते हो। सेम वे जो चीज़ें कम हो रही हैं, जैसे यहाँ पर कम हुआ था, अगर कुछ कम हुआ है तो आप फॉल यूज़ करो, ड्रॉप यूज़ करो, डिक्लाइन यूज़ करो, डिक्रीज यूज़ करो, गो डाउन यूज़ करो, प्लंज यूज़ करो, जैसे जंप होता है वैसे ही प्लंज होता है, राइट, नीचे आ जाना। प्लमेट इज़ एकदम नीचे आ जाना, सो ये 21 से 2 जो आया है दैट इज़ अ प्लमेट, राइट। कोई चीज़ कांस्टेंट रही है, सेम है, जैसे एप्पल्स है, सो द कंजम्पशन ऑफ एप्पल्स remained the same, as in it was 10 in 2000 and it remained the same in 2005 as well. It remained constant, it remained the same, it stayed the same, the consumption of apples was maintained in the same quantity, the consumption of apples was stable, steady, constant। तो ये पूरे ट्रेंड्स के लिए आपके पास ये वोकेबुलरी है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करिए अभी के अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरा लेक्चर हो जाएगा जब सेशन, उसके बाद ये रिकॉर्डेड के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, राइट, तब आप उस चीज़ को दोबारा देख सकते हो। इट इज़ ऑल अप टू यू, दिस इज़ ऑल फॉर यू टू यूज़ इट। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप ही के लिए है। ठीक है, फिर आप ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज कैसे हुए हैं, ट्रेंड्स जो हैं इंक्रीज डिक्रीज हुआ, जंप किया, ग्रो किया, वो सब ठीक है, लेकिन कैसे किया। तो ये जो मैंने बताया यहाँ पर कि 421 और 2 जो है, 421 और फिर 2 हुआ था, राइट। 2005 2000 में 4 था, 2005 में और 2010 में, राइट, ये थे ऑरेंजेस। तो drop steeply, right, significantly, increase significantly, sharply, rapidly, quickly किस में आएगा, steadily, gradually, slowly, ये सब आएगा जब आपको ईयर दिए गए हैं, टाइम दिया गया है। ठीक है, sharply, quickly, rapidly, steeply, कंसिडरेबली, काफ़ी अमाउंट में, सिग्निफिकेंटली भी काफ़ी अमाउंट में, जो ध्यान में आ जाए ऐसी, राइट। सब्सटैंशियली, स्टेडीली, स्टेडी ग्रोथ है मतलब 2-2, 3-3 यूनिट्स का अगर ग्रोथ रहा है तो आप उसको स्टेडीली यूनिट बोल सकते हो। ग्रेजुअल बोल सकते हो, पहले 2 का था, फिर 5 का, फिर 7, फिर 10, दैट इज़ अ ग्रेजुअल ग्रोथ। ठीक है, या ग्रेजुअल फॉल, जैसा भी है। मॉडरेटली, स्लाइटली, थोड़ा सा, 10 का 12 हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल, वैसे। एंड स्लोली, ये सारे टाइम से रिलेटेड हो सकते हैं, स्लोली, ग्रेजुअली, ये सब। ठीक है, तो ये सिर्फ अगर 3 साल है, अगर दिया होता आपको 2001, 2002, 3, 4 करके, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते थे ग्रेजुअली वगैरह, या ज़्यादा आपको टाइमलाइन दी गई है तब आप ये क्विकली, रैपिडली, स्लोली, मॉडरेटली, ये सब यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर एडवर्ब्स फॉर यू, राइट, एडवर्ब्स ऑफ मैनर और इंटेंसिटी। ये आपको बता रहे हैं इंटेंसिटी
कि ये चेंज हुआ, लेकिन कैसे चेंज हुआ ये क्या है आपको ये पूछा नहीं गया, लेकिन इससे आप जो बचे हुए 2 मार्क्स है ना, ये आपको इससे मिल सकते हैं अगर आप ट्रेंड एक्सप्लेन करते समय ये वर्ड्स यूज करोगे। ट्रेंड के मार्क्स हैं, ट्रेंड को ढंग से एक्सप्लेन करोगे तो ये भी मिल जाएंगे, ठीक है। वो ट्रेंड को ढंग से कैसे एक्सप्लेन करना है, लिखेगा तो कोई भी, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये तो कोई भी कर लेगा। 2 मार्क्स तो जो 4 ट्रेंड्स के हैं वो तो सबको मिल जाएंगे, बचे हुए जो 2 हैं वो इस तरीके से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप ट्रेंड कैसे दिखता है, द सेल्स प्राइसेस एजेस, ये भी क्वेश्चन में है, ये भी क्वेश्चन में है, ये आपके काम का नहीं है, जो लिखा होगा वही है, ठीक है। अब आता है ये जो है ये आपके काम का है, दिस इज यू, द प्राइसेस फेल, ड्रॉप्ड, jumped, plummeted, rocketed, increased, decreased, grew, हाँ, ये सब आपको, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। अब आती है आगे की बात, स्लाइटली, अब कैसे ग्रो किया, स्लाइटली ग्रो किया, शार्पली ग्रो किया, रैपिडली ग्रो किया, ये भी आप पे डिपेंड करता है, राइट। कैसे, देयर वॉज अ स्लाइट और या ग्रेजुअल या ये राइज फॉल ड्रॉप, ये टेंसेस आप पे डिपेंड करते हैं, ये एक और तरीका है लिखने का, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये भी आप पे और क्वेश्चन दोनों पे डिपेंड करता है, एंड दिस डिपेंड्स ऑन यू एंड द क्वेश्चन टुगेदर, ठीक है। ये हो गए हैं आपके ट्रेंड का सेंटेंस जनरली दिखता कैसे है, ठीक है, जनरली आपके ट्रेंड का सेंटेंस दिखता कैसे है। आपको कोई चीज ऐड करनी है किसी में, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट, माय थ्रोट इज वेरी बैड, आई हैव नॉट बीन वेल फॉर अ फ्यू डेज। ऑलराइट, आपको अगर कोई चीज ऐड करनी हो तो आप एंड, as well as, moreover, to, also, furthermore, additionally ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो, राइट। तो इससे क्या होगा, आप सेंटेंस को थोड़ा सा आपके कॉम्प्लेक्स बनाओगे और वो बेटर दिखेगा। लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने, लेकिन हमको उसको बेटर भी दिखाना है, तो थोड़ी सी डिटेल आप इन वर्ड्स यूज करके आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो, एंड ऐड ग्रेस टू योर सेंटेंसेस। सीक्वेंस में अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, फाइनली, लास्टली, मीनवाइल, आफ्टर, देन, सब्सीक्वेंटली, ये सब आप क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप इसको सीक्वेंस के लिए भी यूज करो, राइट। these slides are for you to screenshot and use, no problem at all, do it बिंदास तरीके से करो, आप ही के लिए बनाया गया है, राइट। एडिशन की भी और ये सीक्वेंस की भी, ठीक है। कमिंग टू इलस्ट्रेट, कुछ एक्सप्लेन करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल, सच एज, फॉर इंस्टेंस, एज रिवील्ड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय, एग्जिबिटेड बाय, तो ये बेटर वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल तो हम करते ही हैं हमेशा, सच एज भी कॉमन है, इसी को आपको आगे लिखना है, इलस्ट्रेटेड बाय थोड़ा सा बेटर बना के लिख दो, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं है। रिवील्ड, इलस्ट्रेटेड, एग्जिबिटेड, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं है जिसके लिए सामने वाले को डिक्शनरी खोलनी पड़े, राइट। बट उसको ये भी पता चल जाएगा कि आपको बेटर वर्ड्स आते हैं, राइट। टू एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट, ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको पड़ेगी आर्ग्यूमेंट्स में, इसको आपको आर्ग्यूमेंट्स में आप ये यूज़ कर सकते हो अगर आप आर्ग्यूमेंट्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो। बिकॉज है, सो है, देयरफॉर, हेंस, दस, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, ये सब आप आर्ग्यूमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए या कंक्लूड करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोबारा याद दिला देती हूँ, स्क्रीनशॉट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपैरिजन करने के लिए आप सिमिलरली, लाइकवाइज, एज विथ, लाइक, इक्वली, इन द सेम वे, ये तो सारे कितने सिंपल हैं, तो हम यूज़ कर ही रहे हैं इन आवर डेली लाइफ, देन व्हाई नॉट इन आवर एग्जाम्स, राइट।
सो लाइक लिखने की जगह हम सिमिलरली लिख सकते हैं, लाइक की जगह आप लाइकवाइज लिखिए, इन द सेम वे लिखिए। ये तो हम रोज की लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, तो क्यों ना इसे यूज करके थोड़े से मार्क्स बटोर लिए जाएं। ठीक है, किसी को क्वालिफाई करने के लिए बट, हाउएवर, ऑल्दो, अनलेस, एक्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम, एज लॉन्ग एज, इफ, ये सब आप यूज कर सकते हो। कि ऑल द ट्रेंड्स शो एन इंक्रीज एक्सेप्ट सो एंड सो, मतलब एप्पल्स का भी इंक्रीज हुआ था, बनानास भी इंक्रीज हुए थे, बट ऑरेंजेस जो थे वो 21 से 2 पे आ गए थे। तो आप बोलो कि एप्पल्स एंड ऑल द फ्रूट्स, द कंजम्पशन ऑफ ऑल द फ्रूट्स showed a rise or a growth except that of oranges, which fell from 21 in 2005 to 2 in 2010। ऐसे आपने एक्सेप्ट यूज कर लिया, राइट। अपार्ट फ्रॉम यूज करो एक्सेप्ट की जगह। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है आपको, तो आप यूज करो वेयर एज, इंस्टेड ऑफ, ऑल्टरनेटिवली, अदरवाइज, अनलाइक। लाइक को हमने कंपेयर के टाइम लाइक किया था, अब कॉन्ट्रास्ट के लिए आप अनलाइक यूज करो। ऑन द अदर हैंड, कॉन्वर्सली, राइट। एप्पल्स एंड बनानास, the consumption of apples and bananas increased, on the other hand the consumption of oranges decreased। ऐसे करके आपने कॉन्ट्रास्ट शो कर दिया, राइट। एम्फसिस, ये आएगा कंक्लूजन में, ये आएगा कंक्लूजन में। अबव ऑल, इन पर्टिकुलर, एस्पेशली, सिग्निफिकेंटली, इंडीड, नोटेबली, स्पेसिफिकली, ये ट्रेंड के लिए भी यूज कर सकते हो और कंक्लूजन के लिए भी यूज कर सकते हो। कंक्लूजन में आपको पैराफ्रेज करना है ना ट्रेंड्स, तब आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। व्हेन यू हैव टू पैराफ्रेज द ट्रेंड्स तभी भी, और ट्रेंड एक्सप्लेन करने के लिए तो कर ही सकते हो। ठीक है, जैसे किसी का बहुत डिक्लाइन है, लेकिन ऑरेंजेस का फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है, तो आप बोल सकते हो ऑरेंजेस इन पर्टिकुलर, द कंजम्पशन ऑफ ऑरेंजेस इन पर्टिकुलर प्लमेटेड फ्रॉम 21 in 2005 to 2 in 2010। तो आपने ऑरेंजेस को एक्स्ट्रा अलग से दिखा दिया कि इन पर्टिकुलर ऑरेंजेस तो बहुत ही गिर गए। ठीक है, ये है आपका टेबल, ये है लंदन बेकर स्ट्रीट इंग्लिश। इट्स अ वंडरफुल वेबसाइट, मैंने वहाँ से इसको लाया आपके लिए, राइट। ये आपकी वोकैबुलरी के लिए है, आप इसको स्क्रीनशॉट करो, जो करना है करो इसके साथ। आप यूज देखिए, द गिवन डेटा, द सप्लाइड डेटा, द प्रेजेंटेड डेटा, द शोन डेटा, प्रोवाइडेड डेटा। अब डेटा किस टाइप का है, टेबल होगा, डायग्राम होगा, फिगर होगी, चार्ट, फ्लो चार्ट, प्रेजेंटेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, कॉलम ग्राफ, एनीथिंग, राइट। शोज, रिप्रेजेंट्स, ये सब आपका है। डिस्क्रिप्शन भी ये आपका ही है और क्वेश्चन का साथ में मिला के है, राइट। सो दिस इज फॉर यू कि आप उसको शोज बोलो, रिप्रेजेंट्स बोलो, डिपिक्ट्स बोलो, इलस्ट्रेट्स बोलो, गिव्स बोलो, प्रोवाइड्स बोलो, डिस्क्राइब्स बोलो, आउटलाइंस, कंपेयर्स, कॉन्ट्रास्ट, फिगर्स, इंडिकेट्स, प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन, डेमोन्स्ट्रेट्स, इतने सारे वर्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पर, राइट। ये सब हम जो है मारा मारी हमारी चल रही है, ये सारे वो 2 मार्क्स के लिए चल रही है, राइट। कंपैरेटिव डेटा, नंबर ऑफ चेंजेस, डिफरेंस, ये सब आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे इंक्रीज के, जैसे वोकैबुलरी मैंने बताई थी, इन्होंने भी वही बताई है। डिक्रीज की है, स्टेडीनेस की है। जैसे इंक्रीज के लिए है राइज, इंक्रीज, गो अप, अपलिफ्ट, रॉकेट, क्लाइंब, अपसर्ज, सोर, शॉट अप, improve, jump, leap, move upward, skyrocket and surge, right। वैसे ही डिक्रीज के लिए है फॉल, डिक्रीज, डिक्लाइन, प्लमेट, प्लंज, ड्रॉप, रिड्यूस, कोलैप्स, डिटेरियोरेट, डिप, डाइव, गो डाउन, टेक अ नोज डाइव डायरेक्टली ऐसा, स्लम्प, स्लाइड, गो इनटू अ फ्री फॉल। जो अनचेंज्ड है, स्टडी है, उसके लिए अनचेंज्ड, लेवल आउट, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन स्टडी, वाज अ प्लेटो, रिमेन द सेम, रिमेन स्टेबल। देखो कोई इंक्रीज हुआ, फिर स्टेबल है, फिर डिक्रीज हुआ, तो एक प्लेटो क्रिएट हो गया। हमने पिछली क्लासेस में ज्योग्राफी में प्लेटो सीखा था, अराउंड 6th और 7th स्टैंडर्ड, राइट। सो ऐसे के लिए हम अलग अलग वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं, राइट।
मूविंग ऑन टू द एडवर्ब्स, कैसे होगा, ड्रामेटिकली, रैपिडली, शार्पली, ये सब हमने देखा, क्विकली, हरीडली, स्पीडीली, स्विफ्टली, सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली, सब्सटैंशियली, नोटिसेबली, मॉडरेटली, ग्रेजुअली, प्रोग्रेसिवली, स्टेडीली, सीजली। तो ये जो है इसकी इंटेंसिटी ऐसी जा रही है, इसकी इंटेंसिटी ऐसी जा रही है, ठीक है। स्टेडीली, सीजलेसली मतलब बिना कम हुए जाते जा रहा है, जैसा जा रहा है वैसे उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, दैट इज कॉल्ड सीजलेसली। स्लाइटली, स्लोली, माइल्डली, टीडियसली, ये स्लाइट चेंजेस है, एकदम धीरे 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 जो दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन एकदम नोटिस में नहीं आ रहे, ठीक है। इन द चॉइस, अब जो आर्ग्यूमेंट वाला है, यू मे ऑल्सो बी गिवन अ completely different kind of topic where there is no data but information of a theoretical kind, एक worded question रहेगा पूरी तरीके से। Here you will have to present arguments for the subject given और minimum 2 arguments के लिए 2 marks हैं, जैसे वहाँ 4 trends के लिए 2 marks थे, यहाँ पर 2 arguments के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ arguments के लिए है, सिंपलर चॉइस वुड बी विद द डेटा, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको वो आर्ग्यूमेंट्स खुद से बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, आपको बस देख के वहाँ उतारना है पेपर में, राइट, छापना है, सिंपल, राइट। आर्ग्यूमेंट्स में आपको बनानी पड़ेंगी, फॉर्म करना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिंपल होगा डेटा करना। क्या आपके पास तो वोकैबुलरी पूरी दी हुई है, उसी को आपको करना है। अब ये है एक सैम्पल क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लाया है। क्वेश्चन है, द ग्राफ बिलो डिस्प्लेस डेटा अबाउट ग्लोबल वाटर कंजम्पशन इन डिफरेंट सेक्टर्स फ्रॉम 1900 to 2000, राइट अ पैराग्राफ एनालाइजिंग द डेटा। ये मेरा 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मुझे लिखना है 100 to 120 वर्ड्स में, ठीक है। आगे देखते हैं हाउ आई हैव रिटन दिस, आई विल एक्सप्लेन टू यू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द आंसर दैट आई हैव रिटन। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ माई पेन ताकि मैं पॉइंट आउट ईजिली कर सकूँ आपको, ठीक है। थ्रू द गिवन ग्राफ द यूसेज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड in agricultural, industrial and domestic sectors has been exhibited। मैंने क्या किया, मैंने एक आधा डिटेल ऐड कर दिया। क्या डिटेल ऐड कर दिया, क्वेश्चन में था डिफरेंट सेक्टर्स, क्वेश्चन में था डिफरेंट सेक्टर्स, बट मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक, ठीक है। मैंने बस ये डिटेल यहाँ पर ऐड कर दी, डिफरेंट को मैंने स्पेसिफाई कर दिया। आई हैव स्टिल डन दिस इन 1 सेंटेंस, ठीक है। ये मैंने किया है एक सेंटेंस में, राइट। यहाँ खत्म हो गया, पैराफ्रेज मैंने कर दिया, मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट व्हाट आई हैव डन, वी कैन सी दैट, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, क्या करना है, एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे वी कैन सी दैट द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन फॉर द पीरियड बिटवीन द ईयर्स 1900 to 2000 इन क्यूबिक किलोमीटर्स। मैंने एक और डिटेल ऐड कर दिया, एक और डिटेल ऐड कर दिया। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरे ट्रेंड्स को लेके, मैंने हर ट्रेंड को अलग कलर में दिया है ताकि आप समझ सको, ठीक है। अब यहाँ आप देखो क्यूबिक किलोमीटर्स में कंजम्पशन दिया और यहाँ पर जो है आपके ईयर्स दिए हुए हैं इस पे, ठीक है। ये ऐसा है, शुरुआत में सब ज़ीरो है, देख लो 1900 में यहाँ पर इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक जो है ये एकदम ही ज़ीरो के करीब है, बट एग्रीकल्चर इज़ ऑलमोस्ट हाफ वे। देखो 0 और 1000 के बीच में एग्रीकल्चर जो है वो हाफ वे ऑलरेडी है 1900 में, और इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो। इन द इनिशियल डेज, मैंने वर्ड नहीं यूज़ किया 1900, मैंने बस इनिशियल डेज यूज़ कर लिया, अनदर डिफरेंट वे। The water consumption in all the 3 sectors was comparatively pretty low। मैंने बस इसको लो करके यूज कर दिया, ये मेरा एक ट्रेंड हो गया, खत्म। However, I have used something to contrast this। However, from the year 1940, ये देखो ये यहाँ तक सब स्टडी चल रहा है, यहाँ तक सब स्टडी है, देखो दिस इज स्टडी। 1940 से क्या हुआ, यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट हो गया है ऊपर, राइट।
ये भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ है, ये फिर भी डोमेस्टिक यूज जो है ये फिर भी थोड़ा सा स्टेडी चल रहा है. फ्रॉम द ईयर 1940, interestingly, this again I have used to enhance what I am writing, my language. Visible growth जो दिख रही है, right, in usage is observed in all the areas, सब जगह चालू हो गई है growth. ये हो गया मेरा सेकेंड ट्रेंड. एग्रीकल्चर शॉट अप, आई हैव यहाँ से एकदम चेंज है, देखो शॉट अप फ्रॉम 500 क्यूबिक किलोमीटर्स, यहाँ से इन 1900 यहाँ 500 था, टू बियॉन्ड 3000, 2000 तक देखो आके क्या है, 3000 की ये लिमिट है, 3000 के भी ऊपर चला जा चुका है इन 2000. while industrial use went up to 1000 cubic kilometers यहाँ पर from almost negligible in 1900. यहाँ मेरा थर्ड ट्रेंड भी हो गया है, राइट. ये फर्स्ट ट्रेंड तो जैसे इसको अगर मैं कंसिडर नहीं भी करूँ, इसको अगर मैं एक और इंट्रोडक्शन का पार्ट कंसिडर करूँ तो भी दिस इज माई फर्स्ट ट्रेंड, दिस बिकम्स माई sorry, this is my first trend, this becomes my second trend and this becomes my थर्ड ट्रेंड. ठीक है, एक एग्रीकल्चर का ट्रेंड और एक इंडस्ट्रियल यूज का ट्रेंड. लास्ट फोर्थ, सिमिलरली अगेन आई हैव यूज्ड अ वर्ड, द डोमेस्टिक यूज ऑल्सो ग्रू फ्रॉम ऑलमोस्ट नील टू अबाउट 500 क्यूबिक किलोमीटर्स. राइट, यहाँ हो गए मेरे 4 ट्रेंड्स. विथ माई लैंग्वेज आई एम इंश्योरिंग कि मुझे 3 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स मिले. राइट, ओवर एंड अबव मैंने कंक्लूड करने के लिए ये और एक वर्ड यूज कर लिया, ओवर एंड अबव वी कैन कंक्लूड दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड. मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कंज्यूम कर रहा है. मैंने कंक्लूजन में यही किया, राइट. मैंने सारे ट्रेंड्स को पैराफ्रेज कर दिया, मैंने एक कंक्लूजन निकाला जो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि एग्रीकल्चर इज द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड. कंपैरिजन क्या था 3 सेक्टर्स के बीच में, कंक्लूजन मेरा क्या रहेगा, कौन सेक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, राइट. So I hope this today's session has been very fruitful for you. बहुत लोग इसका वेट कर रहे थे. Please watch it again and again if you want. Please watch it, take screenshots, I will tell you again. And don't forget to ask your doubts in the comments. Right, join the Telegram group. You will find all of these links in the description. And don't forget to use the S Live code. ठीक है, अब आप लोग जो है अपनी हेल्थ का हमको ध्यान रखना है. डोंट गो आउट, डोंट टेक रिस्क्स, यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स. I know it is the festive season, enjoy the festival but don't go out of your way. You can enjoy the festival next year, as it is there is no point in festivals this year. तो आप जो है your priority should be your studies and your exams and your health. So if you don't maintain your health, if you are not careful about your health, there's no point in studying all of this if you are not able to give your exams, right? So ऐसा कुछ मत करिए, stay safe, stay healthy, and we will meet next time with a literature chapter. All right, chalo, see you, bye bye.